مسلمانوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں اس لیے تشریف لائے تھے کہ تم چٹائی سے لے کر ہوائی جہاز تک میں بیٹھو تو فرعون بن کر مت بیٹھنا، اللہ کا بندہ بن کر بیٹھنا۔ اے لوگوں، تم اسمبلی میں بیٹھو یا پارلیمنٹ میں بیٹھو، تم ایم ایل اے بن جاؤ، پردھان بن جاؤ، مکھیا بن جاؤ، سرپنچ بن جاؤ، منسٹر بن جاؤ، آنریبل ممبر آف پارلیمنٹ بن جاؤ، تمہیں جو بننا ہے بنو، اسلام تمہیں روکتا نہیں ہے۔ ڈاکٹر بننا ہے بنو، اسلام ویلکم کرتا ہے اور اسلام کہتا ہے ڈاکٹر بنو، کیونکہ ڈاکٹروں کی ضرورت لوگوں کو ہے، ہمیں بھی ہے اور سب لوگوں کو بھی ہے۔ اللہ سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے، اللہ ڈاکٹروں کو بھی نیک ہدایت عطا فرمائے۔ ویسے آپ کے علاقے میں تو ڈاکٹر لوگ بہت اچھے ہوں گے، دوسرے کنٹری کے ڈاکٹر اتنے بدماش ہوتے ہیں کہ سر کا درد ہو تو گھٹنے کا ایکسرے کروا دیتے ہیں۔ یہاں کے لوگ تو میرے خیال سے الٹا سیدھا ٹیسٹ نہیں کرواتے ہوں گے، لیکن کتنا گیا گزرا ڈاکٹر ہوگا، اس کی ماں نے اس کو کس ڈبے کا دودھ پلایا ہوگا کہ وہ ڈاکٹر ایک غریب پر ترس نہیں کھاتا ہے اور اسے 2 3 4 قسم کے ٹیسٹ کروا کر اس پر کمیشن کھاتا ہے۔ اس کمیشن کو کھانے کے بعد یہ عمرہ میں جاتا ہے۔ پرابلم یہاں ہے، حج اور عمرہ میں پرابلم نہیں ہے۔ یہ جو حالات بگڑ رہے ہیں، کیوں بگڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مسلمانوں، ہمیں تو اللہ کے گھر کا احترام تک کرنا نہیں آتا۔ یہاں سے جب مکہ المکرمہ جاتے ہیں تو میں اکثر ایئرپورٹ، اللہ کا شکر ہے کہ دمدم ایئرپورٹ میں اکثر جاتے وقت آتے وقت دیکھتا ہوں کہ حاجی جا رہے ہیں، حاجی جا رہے ہیں، حاجی جا رہے ہیں، تو مجھے بڑا مزہ آتا ہے دیکھنے میں۔ ایک تو اچھا بھی لگتا ہے، اللہ کے مہمان، لیکن میں جانے والے اور آنے والوں کو دیکھتا ہوں کہ کیا ہے۔ تو جانے والے کہتے ہیں بیگ، جانے والے کیا بولتے ہیں جب یہاں سے جاتے؟ لبیک، ہے نا بھائی؟ کیا کہتے ہیں بولو تو ذرا؟ لبیک اللہم لبیک۔ کلکتے سے شروع ہو گیا ایک دم لبیک 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 لبیک، اور ریٹرن جب آنے لگے تو بیگ 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 بیگ، 14 بیگ لیے ہوئے ہیں، لبیک بھول گئے۔ جدہ ایئرپورٹ، مدینہ ایئرپورٹ میں میرا بیگ کہاں، میرا بیگ کہاں؟ ہم نے کہا یا اللہ، سنا تھا کہ قیامت میں نفسی نفسی ہوگا، یا تو ایئرپورٹ میں نفسی نفسی ہو رہا ہے۔ حاجیوں کا سامان دیکھ کے 40 کلو علاوہ تو 80 کلو سامان لے کر آگئے۔ حاجی صاحب کیسے لے جاؤ گے؟ بولے ہم دعا کیا مکہ میں دعا کیا۔ اب وہ دعا کیا کیے؟ اب ایئرپورٹ میں آ کے اٹک گئے تو اب رو رہے ہیں کہ ہم کہاں سے لائیں گے، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں۔ جہاز والے نکالتے سامان پھینک دیتے، کیوں؟ اس لیے کہ حج تو کرنے گئے لیکن دل میں اسلام ابھی داخل نہیں ہوا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، کولا گھاٹ برج پہ ایک لڑکا کھڑا ہو کر سیلفی لے رہا ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، حالانکہ یہ بھی غلط کام ہے، مت کیا کرنا۔ کتنے لوگوں کی جانیں چلی گئی، کبھی نہیں۔ یہ تو سیلفی ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے کہ اب تو بھائی میرے جیسے چھوٹے موٹے آدمی روزانہ ہی ہم اس چکر میں پڑ جاتے ہیں، جہاز میں، ہوائی خیر یہ تو اپنی باتیں نہیں بتانی چاہیے، بہرحال ایک کامن ہو گئی۔ ذاتی چیزوں کو وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ میں اتنا بڑا انسان نہیں ہوں کہ میں اپنی باتیں بتاؤں، استغفر اللہ۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہر فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے۔ مختصر یہ ہے کہ کولا گھاٹ کے برج پہ سیلفی، ہائی وے پہ سیلفی، مال میں سیلفی، ایئرپورٹ میں سیلفی۔ بھائی اتنی عادت خراب ہو گئی کہ کعبۃ اللہ میں بھی پہنچے تو دعا سے پہلے سیلفی۔ آئے ہائے مسلمانوں، تمہیں کیا ہو گیا؟ مسلمانوں تمہیں کیا ہو گیا؟ تم اللہ کو راضی کرنے آئے ہو یا اپنا کفن پہنا ہوا عمرہ دنیا کو دکھانے آئے ہو؟ ارے یہ احرام کا جو کپڑا ہے یہ کفن کا کپڑا ہے۔ فرق اتنا ہے کہ آج تو زندہ ہو کر پہن رہا ہے، کل جب تو مر جائے گا تو دنیا تجھے پہنا دے گی، اس وقت تو سیلفی لینے کے قابل نہیں رہے گا۔ اپنی بیوی
کو बाहों में लेकर काबतुल्लाह के सामने सेल्फी ले रहे, हम कितना नीचे गिर गए। अल्लाह का घर जहां फरिश्ते भी आके डरते हैं, जहां अंबिया अलैहिस्सलाम अपने गुनाह अपने लिए अल्लाह की मोहब्बत मांगा करते थे, जहां कयामत तक के गुनहगार अपने गुनाहों की माफी मांगेगा, तू माफी छोड़कर, गुनाहों की माफी छोड़कर अल्लाह को खुश करने के बजाय दुनिया को खुश करने के लिए अपने कैमरे को निकाल कर सेल्फी ले रहा है। तुम बताओ कि तुम उम्रा करके आ रहे हो या उम्रा लुटा कर आ रहे हो। मदीने मुनव्वरा में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़े अक़दस इस दुनिया में और आसमान पर और अर्श मौला पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहां पे आराम फरमा है, और जो मिट्टी मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक जिस्म से मस की हुई है, वो मिट्टी अल्लाह ने अपने अर्श से भी ज्यादा मुबारक फरमाया है। ये देवबंदी मौलाना आपको बोल कर जा रहा है। आप मुझे गड़बड़ 7:45 7:15 मत समझिएगा, मैं सीमेंटेड देवबंदी हूं अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और हां, अपने मसलक पर रहता हुआ मैं दूसरों के मसलक का एहतराम करता हूं। अजमेर शरीफ के खिलाफ अभी केस हुआ, मुस्लिम पसंदीदा बोर्ड के डेलीगेशन के साथ मुझ जैसा छोटा आदमी अजमेर पहुंचा और पहुंचकर वहां के लोगों से कहा, हमारी तुम्हारी मसलकें अलग हैं, मगर खुदा की कसम हमारा दीन एक है। तो मैं आपसे साफ साफ एक देवबंदी आलिम होने, आलिम तो खैर बहुत बड़ी चीज होती है, मैं तो बहुत छोटा सा तालिब इल्म हूं, माफ कीजिएगा ये बड़े जुमले नहीं आने चाहिए जबान पे। कुछ किताबें अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहा हूं, पढ़ाऊं, अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे असातिज़ा को, मेरे माँ बाप को, लोगों को, बुजुर्गों को। लेकिन एक देवबंदी नुक्ते नजर और मसलक देवबंद अपने बुजुर्गों की जूतियों के सदक़े से ये बात अर्ज कर रहा हूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में जहां पर आराम फरमा है, और जो मिट्टी आपके जिस्म अतहर से मस कर रही है, वो मिट्टी, उस मिट्टी को अल्लाह ने अपने अर्श से भी ज्यादा मुबारक फरमाया। नारे तकबीर। आप सोच सकते हैं इश्क की बात, सोच सकते हैं मोहब्बत की बात, और ये मकाम किसी मौलवी ने नहीं दिया है, ये मकाम किसी पीर ने नहीं दिया है, ये मकाम किसी बाबा ने नहीं दिया है, बल्कि उस मिट्टी को सबसे मुकद्दस किसने बनाया? अल्लाह ने। और ये तमाम अकाबिरीन देवबंद का मसलक और अकीदा है। मैं अकीदा बयान कर रहा हूं, ये वाकया नहीं, ये अकीदा है। वहां पर पहुंचकर जहां पर जिब्रील भी अदब से पहुंचते हैं, वहां पर पहुंचकर जहां अच्छों का कलेजा मुंह को आ जाता है, मैंने बुजुर्गों को हिचकियां लेते हुए देखे हैं, मैंने बुजुर्गों को रोते हुए देखा है। बाज़ अकाबरीन को हमने देखा कि वो रोज़े अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने नहीं जा रहे हैं। ये वो हैं जिनकी तहज्जुद क़ज़ा नहीं होती, ये वो हैं जिनकी नमाज में कभी तकबीर उला नहीं छूटी। मुझ जैसा पापी इंसान नहीं, मुझ जैसा गुनहगार नहीं, अल्लाह मुझे माफ फरमाए, अल्लाह आप सबको भी माफ फरमाए। उन बुजुर्गों की बात कर रहा हूं जिनकी जूतियों के धूल के बराबर अबू तालिब की औकात नहीं है। मैंने उन अल्लाह वालों को देखा है कि रोज़े अक़दस से पीछे हटकर दरूद पढ़ रहे हैं और रो रहे हैं। किसी ने कहा, बाबा सामने चलकर सलाम कीजिए। फरमाया, क्या मुंह लेकर आका के पास जाऊंगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कौन सा मुंह लेकर जाऊंगा? अरे वहां पर मेरी कौम के नौजवानों, मुसलमानों, उस दरबार में भी जाके तुम वीडियो ऑन करते हो, तुम्हें शर्म कब आएगी? तुम्हें गैरत कब आएगी? आज का ये मजमा तय करे कि अल्लाह जब भी हमें बुलाएगा तो हम अल्लाह को राजी करेंगे, तस्वीरें नहीं खींचेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह ये मजमा वादा करता है इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह आप वादा करते हैं, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला आप सबको और आप सबकी बरकतों से, आप सबके सदके से, आप सबके तुफैल से अल्लाह हम सबको भी मकबूल हज नसीब फरमाए, आमीन। मकबूल उम्रह नसीब फरमाए, आमीन। अपने आप को मुसलमान बनाओ। आज तुम मुसलमान क्यों नहीं बनना चाहते हो? आज मुसलमानों, आप हमारा मुसलमान हैं, हमारा नाम मुसलमान है, हमारा खानदान मुसलमान है, हमारे बाप दादा मुसलमान है, लेकिन मैं पूछता हूं कि एक मुसलमान जिस वक्त हाथ से चोरी करता है उस वक्त वो मुसलमान नहीं रहता है। ऐ मुसलमानों,
तुम मुसलमान हो तो अपने हाथ को मुसलमान क्यों नहीं बना लेते? लोगों, ये हाथ तो तुम्हारा है, ये हाथ तो हमारा है, ये किसी के किराए का हाथ नहीं है। आज तय करो, पूरी दुनिया को मुसलमान बनाने से पहले ये वादा करो कि इंशाअल्लाह हम अपने हाथ को मुसलमान बनाएंगे। मुसलमान का हाथ होने का मतलब ये है, इस हाथ से कभी हराम काम नहीं होगा इंशाअल्लाह, इस काम से कभी बुरा काम नहीं होगा। मुसलमानों, अपने पांव को मुसलमान बनाओ कि ये पांव कभी गलत रास्ते में नहीं जाएंगे। मुसलमानों, अपनी आंखों को मुसलमान बनाओ कि आंखों से हराम चीजें नहीं देखी जाएंगी। मुसलमानों, अपनी जबान को मुसलमान बना लो कि इस जबान से हम कभी झूठी बात नहीं कहेंगे। मुसलमानों, आज से 40-45 साल पहले कनाडा, और अभी एक हफ्ता पहले की भी न्यूज है कि अमेरिका के एक बहुत बड़े चर्च के फादर, अभी एक हफ्ता पहले की खबर दे रहा हूं आपको, बहुत बड़े चर्च के फादर, मामूली नहीं, उनके अंडर में सारे आते हैं, उन्होंने अचानक ऐलान किया कि अब मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, अब मैं इस्लाम से रुक नहीं सकता, अल्लाह का दीन सच्चा है। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अमेरिका के चर्च के फादर ईमान ले आए, अल्हम्दुलिल्लाह, इसकी मुझे खुशी है, इसको सबकी खुशी है। मगर क़यामत के दिन और कब्र में हमारी माफी का दारोमदार उनके अमल पर नहीं होगा, हमारे अपने अमल पर होगा। अमल हमारा कमजोर है, लेकिन अल्लाह से माफी मांगते रहे, अल्लाह से मग़फ़िरत मांगते रहे तो अज़ीज़ाने मिल्लत, दूसरों के ईमान पर खुश होना ये अच्छी बात है, मगर अपने ईमान की फिक्र करना ये मोमिन होने की अलामत है। तो अपने ईमान की फिक्र करें। आज हमारी पोजीशन ये है, अभी चंद दिनों पहले की बात है, खैर मैं ये पहले बता दूं, 40-45 साल कबल की बात है कि कनाडा के चर्च के एक बहुत बड़े प्रिस्ट, उन्होंने मुताला शुरू किया, तो लोगों ने कहा कि कुरान भी पढ़ो, तो कुरान उनको कहीं से मिल गया और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कुरान पढ़ा, तो उनका दिल करने लगा कि मैं और इस्लामी किताबें पढ़ूंगा। तो इस्लामी किताबें खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, तो उस चर्च के फादर के पास एक कार थी, गाड़ी, उन्होंने कार बेच दिया। कार बेचकर इस्लामी किताबें खरीदी, हदीस की किताबें, कुरान की तफसीरें ली। अल्लाह हिदायत देने वाला है, अल्लाह ने उनको हिदायत दे दिया और वो अल्लाह के फजल करम से ईमान ले आए। वो हज करने के लिए पानी के जहाज से, उस जमाने में जो भी सहूलतें थी, हवाई जहाज, पानी के जहाज, अल्लाह की तौफीक से वो हज करने के लिए पहुंचे और मक्के और मदीने से जियारत के बाद वो कनाडा नहीं गए, वो हिंदुस्तान तशरीफ लाए। और हिंदुस्तान में जब बॉम्बे आए तो बॉम्बे के मुसलमानों ने एक मजलिस रखी उनके लिए और कहा कि आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को कुछ नसीहत कर दो। तो उस चर्च के 9 मुस्लिम फादर ने, हमारे भाई ने जो नसीहत की है मुसलमानों को, क्या वो नसीहत आप सुनना चाहेंगे? सभी लोग सुनना चाहेंगे? बता दूं आपकी खिदमत में, अगर मैंने बता दिया तो आप क्या देंगे मुझे? माशाअल्लाह, क्या बात है, जज़ाकुमुल्लाह, अल्लाह खुश रखे आप लोगों को। आपने तो हमें खरीद लिया। आप दुआ देंगे मैं बिक जाऊंगा आपके हाथों में, दुआ देंगे इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह, अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे आप सबको, अल्लाह खूब बरकतें अता फरमाया आप हज़रात की जिंदगियों में। उस 9 मुस्लिम भाई ने खड़े होकर तकरीर की और तकरीर में यह कहा, हिंदुस्तानी मुसलमानों, तुम में और मुझ में जो फर्क है वो फर्क ये है, मैंने कार बेचकर ईमान खरीदा है, तुमने ईमान बेचकर गाड़ी खरीदी है। बात समझ में आई आपको? आई समझ में? मैंने कार बेचकर ईमान खरीदा, तुमने ईमान बेचकर मकान खरीदा है, तुमने ईमान बेचकर कार खरीदा है, तुमने ईमान बेचकर पोस्ट खरीदा है। तो जो मुसलमान 1 किलो चावल के लिए ईमान बेच दे, जो मुसलमान 1 मीटर कपड़े के लिए ईमान बेच दे, जरा बताओ क्या ऐसे मुसलमानों के बुनियाद पर हिंदुस्तान में कोई इनकलाब आ सकता है? आ सकता है?
1 मीटर कपड़ा तुम ईमानदारी से नहीं बेच सकते, 1 किलो गेहूं और चावल तुम ईमानदारी से तौल नहीं सकते। तुम अगर गाड़ी चला रहे हो तो गाड़ी को ईमानदारी से नहीं लेके जा सकते। मुसलमानों, आज क्या हाल हो गया तुम्हारा, मस्जिदों में बैठकर झूठ बोलते हो, और माल, बस माल चाहिए, चाहे हराम के रास्ते से क्यों ना हो। नऊज़ बिल्लाह, याद रखना मेरी कौम के लोगों, जब हराम रास्ते से माल आएगा, पहले तो मैं अल्लाह से तौबा करता हूं, आप सबके लिए भी माफी मांगता हूं, अपने लिए भी माफी मांगता हूं कि अल्लाह हम सबको और हमारी नस्लों को क़यामत तक ईमान पर कायम रखिए, आमीन। लेकिन खतरा है कि जो माँ बाप हराम माल अपने बच्चों को खिलाएंगे, अल्लाह माफ फरमाए, वरना डर है कि कहीं ईमान निकल ना जाए, नऊज़ बिल्लाह। जो आप पूरे हिंदुस्तान में मुस्लिम बेटियों का सुन रहे हैं, बेटियां भाग रही हैं, भगाई जा रही हैं, मोबाइल फोन दिए जा रहे हैं, एलानिया तौर पर कह रहे हैं कि हाँ मैं चली जाऊंगी, उसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है वो हराम लुक़मा है, हराम लुक़मा। और आज हमारे यहां जो मुर्गी ज़बह किए जा रहे हैं, उन ज़बह करने वालों को भी अल्लाह तौफीक दे के हलाल तरीके से ज़बह करे। देखो, हलाल गोश्त, ये जो खस्सी का गोश्त है, बकरे का मटन, ये हलाल है अल्हम्दुलिल्लाह, इसका कारोबार भी हलाल है, इसके कारोबार में अल्लाह ने बरकत दी है। जो लोग मटन गोश्त का कारोबार करते हैं, उसकी हड्डियां भी काम में है, उसके चमड़े भी काम में है, उसकी आंतें भी काम में है, उसका सर भी काम में है, सारी चीजें काम में आती हैं। लेकिन उस हलाल को कमाने वाला परेशान क्यों है? परेशान इस तरह है कि वो हलाल गोश्त बेचकर उस पैसे से शराब पीता है, हलाल माल को हराम जगह खर्च करता है, उस माल की बद्दुआ उसको लगती है। आप जरा सोचिए कितना नीचे गिरते चले जा रहे हैं हम। हमें इस बात का एहसास भी नहीं। आज मस्जिदों में फितना क्यों है? इसलिए कि मस्जिद में जो आदमी एसी लगाए, अल्लाह जाने उसका कैसा पैसा है, उसकी ठंडी हवाओं में नमाज पढ़ने वालों की नमाज का क्या हाल होगा। पहले मस्जिदें कच्ची थी, नमाजी पक्के हुआ करते थे, अब मस्जिदें पक्की हो गई, नमाजी कच्चे हो गए। अब नमाजों में दम नहीं रहा। वजह क्या है? अजीजान मिल्लत, अपने आप को ईमान की तरफ लौटाइए। मैं आपसे सच कह रहा हूं, हिंदुस्तान का मुसलमान सिर्फ एक काम कर ले, सिर्फ एक काम, वो ये तय कर ले कि हम सच बोलेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह अगर पूरा हिंदुस्तान का मुसलमान सच बोलने लगे तो मैं आपसे अल्लाह की जात पर यकीन रखते हुए कहता हूं कि हिंदुस्तान की हुकूमत मुसलमानों के हाथ में खुद आ जाएगी इंशाअल्लाह। मगर इसके लिए सच्चा बनना पड़ेगा ना। अल्लाह झूठ बोलने वाले मुसलमान को नहीं देंगे। झूठे को हुकूमत नहीं मिलती, अगर मिल भी जाती तो देखो क्या हालत है दुनिया में, मुसलमान कहां पहुंचे। तो आज हुकूमत इन्हीं कमजोरियों का फायदा उठा रही है कि जब तुम दीन पर नहीं चल रहे हो, फजर की नमाज में मस्जिदें खाली हैं, तुम्हारी मस्जिदों में इंतशार है, आपस में तुम बटे हुए हो, आपस में एक दूसरे के खिलाफ हो, सूदखोरी हो रही है, हराम खोरी हो रही है। जब इस तरह की हरकतें मुसलमान करेंगे तो फिर दो बातें हैं। एक तो ये नऊज़ बिल्लाह के बच्चों के बिगड़ने का खतरा है, अल्लाह बचा ले हम सबको, आमीन। और दूसरा खतरा ये है कि हुकूमत जालिम रहेगी नऊज़ बिल्लाह, और जो जुल्म करेगी अल्लाह उसके भी जुल्म से हम सब की हिफाजत फरमाए।